Good morning to all of you children. This is Pavan Kumar and today we will study mathematics. Last week Mr. Manmohan sir taught you exercise number 2.1 and he was continuing exercise number 2.2. Right. So few questions have been completed by him and few questions left. So whatever number of questions are left will be taught by Manmohan sir only because he is in continuation, right? So remaining questions of this exercise he will only teach you, and what I will teach you today is the next exercise, that means solving equations having variable on both sides, right? Now what you have studied till now in the equation number in the exercise 2.1, if I remind you in exercise number 2.1, please wait a minute, let me open it. Yes, exactly, here it was your exercise number 2.1. You can see few questions over here. Question number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. In all the questions you can see that variable is present on one side. Variable is present on one side only, that means on the LHS, left hand side. Variable is not present on the other side, that means right hand side. So what we have to study in exercise number 2.3, which I will be teaching you today, is that how to solve those equations, which has variable on both sides, right? So having equations on both sides, having variable on both sides, such type of equations we are going to solve today. That means exercise number 2.3 we will be solving today. So let us start this exercise without wasting time. Let us start this exercise. So I am starting with question number 1. Question number 1. Please wait a minute. Let me open this part where I will write. Okay. So this is your exercise number 2.3 and we are doing question number 1. Question number 1 we are doing. The question is 3x is equal to 2x plus 18. 3x is equals to 2x plus 18. Question number 1. 3x is equal to 2x plus 18. This is your question, right? We are starting with the easiest easiest numerical, or you can say easiest problem, so that you can find a way to solve difficult problems, right? तो सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगेगा कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना? तो आप लोग देख सकते हो ये वेरिएबल है, दिस x इज नोन एज वेरिएबल. नाउ फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस x इज कॉल्ड variable. We are calling x as variable because its value can vary. Vary means its value could be changed. Its value can be changed. That means it could be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That means according to the equation whatever answer will come, that will be the value of x. I hope you understood. So मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल का मतलब क्या है. वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना मतलब चेंज होना है, यानी कि जिस चीज़ की वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट? ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड वेरिएबल. जैसे आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये x यहाँ पर दे रखा है और एक यहाँ पर दे रखा है, मतलब ये क्या हो गए, एक कैटेगरी के हो गए, ठीक है? जैसे एक कैटेगरी क्या हो गई, जैसे चाउमीन हो गई और क्या हो गया, मैगी हो गई, है ना? तो ये सब काहे में आ जाता है, आप लोगों का फास्ट फूड कैटेगरी में आ जाता है. तो बिल्कुल ऐसी ही कैटेगरी हो गई इन नंबर्स की भी. ये कैसे नंबर्स हैं? ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ वेरिएबल प्रेजेंट है, राइट? तो सारे वेरिएबल्स जिनके साथ सारे नंबर्स सारी टर्म्स जिनके साथ वेरिएबल प्रेजेंट होता है, वी यूज टू कीप ऑल दोज नंबर्स, ऑल दोज टर्म्स ऑन वन साइड, and the terms which are not having variables will be kept on the other side. This is the way we are going to solve our question. So let us start without wasting time. सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि वेरिएबल वगैरह चीज़ें क्या होती हैं. तो अभी इसके बाद you can see 3x written over here. ये 2x यहाँ पर लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड में है. So what we will do, अभी मैंने बताया कि चाउमीन और मोमोज और क्या नाम है,
जितने भी फास्ट फूड हैं उनको सबको एक तरफ कर दो, और जितने भी ये मतलब फास्ट फूड की कैटेगरी में नहीं आता उसको दूसरी तरफ कर दो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स वाले जो टर्म हैं उनको एक तरफ कर देंगे हम, और जो विदाउट वेरिएबल है उनको एक तरफ कर देंगे। सो दिस 2x वी विल ट्रांसपोज टू विच साइड, टू लेफ्ट साइड। जब हम इसे लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो 2x है इट बिकम्स -2x, राइट। आफ्टर दैट क्या गया, इक्वल आ गया। अब इक्वल के बाद राइट हैंड साइड में क्या बच जाएगा भाई, ये 18 बच जाएगा, तो इसको 18 को ऐसे ही लिख दो। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कहाँ आपने खिचड़ी बना दी एक अच्छे खासे क्वेश्चन की। तो ये जो है खिचड़ी नहीं बनाई गई है, ये आप लोगों को समझाया जा रहा है जिससे आप लोग इजी क्वेश्चन को समझकर बढ़िया से आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी बड़े ही आसानी से कर पाएं। तो 3x - 2x कितना होगा, 3x - 2x होगा x के बराबर, और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इस तरह से ये आ जाएगा 18। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया x इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, दैट मीन्स वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। वेरीफाई आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, द आंसर ऑब्टेन्ड बाय यू लाइक x इज इक्वल्स टू 18, पुट दिस वैल्यू, पुट x इज इक्वल्स टू 18 इन द क्वेश्चन। आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18। ओके, नाउ 3 इंटू 18, डू नॉट मल्टीप्लाई, कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, बेकार में आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कीमती चीज़ होती है। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, नाउ यू कैन सी यहाँ पर 18 है, इधर भी 18 है, दैट मीन्स वी कैन टेक 18 कॉमन, राइट। 18 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 2 बच जाएगा, सो 2 वी हैव टेकन कॉमन, प्लस उसके बाद यहाँ तो था ही 18, देन व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर टेकिंग 18 कॉमन, 1 बच जाएगा। कितना हो गया ये, 3 इंटू 18 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट को आप अगर ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, 3 इंटू 18। अब आप यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, ये है कि आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। इन दोनों के बराबर आने से हमें ये पता चलता है कि द आंसर विच वी आर गेटिंग एज x इज इक्वल्स टू 18 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब ये चीज़ जो है, कौन सी चीज़, ये वाली, एक मिनट रुकिए बताता हूँ। ये सारा का सारा काम आप कब करेंगे, ये सारा काम आपको तब करना है जब या तो आपसे कहा जाए, otherwise you have sufficient time to check your answer whether it is correct or not. Okay, in those conditions only you will do this work, otherwise you will not do this work in any type of question. और बार बार ये मत पूछना कि ये हमें सारे क्वेश्चन में करना है या सारे क्वेश्चन में नहीं करना है। 8th क्लास के बच्चे जो हैं बहुत पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें कॉपी में करना है या नहीं करना है, सर ये करना है या नहीं करना है। चलो अच्छी बात है बच्चों, पूछना भी चाहिए, लेकिन मैंने आप लोगों को इस बार पहले ही बता दिया कि इस तरीके का कुछ भी आप लोगों को तभी करना है जब या तो आपसे पूछा जाए, अदरवाइज यू हैव सफिशिएंट टाइम टू चेक योर आंसर ओनली इन दीज 2 कंडीशंस, अदरवाइज डू नॉट डू दिस वेरिफिकेशन। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इसको वेरिफिकेशन कहा जाता है। वेरिफिकेशन मीन्स अपने आंसर को जांचना, परखना कि सही आया या नहीं आया। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। आप लोग समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अभी आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 5t माइनस 3। ये है 5t माइनस 3, 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इसके बाद क्या है भाई, 3t माइनस 5। After this you have 3t minus 5. Okay, now this is our question. Again you can see variables are present on both sides of the equation. On the left side you have 5t, on the right side you have 3t. ये इधर ऐसे ऐसे मैं मिरर इमेज दिख रही है सामने स्क्रीन में, इसलिए आप लोगों को अपोजिट लग रहा होगा, तो आप लोग समझ जाइएगा, मैं बोलने से पता चल जाएगा आप लोगों को।
तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगेन हमें क्या करना है, चाउमीन मोमोज को एक तरफ रख देना है और सारी जो हरी सब्जियां हैं उनको एक तरफ, ठीक है। दैट मीन्स टर्म्स कैरिंग वेरिएबल विल बी केप्ट ऑन वन साइड, दैट मीन्स सपोज लेफ्ट साइड। सो 5t विल कम एज इट इज। देखो उससे भी पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, और इजी हो जाएगा ये। देखो 1 मिनट रुकना बस, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। आप लोगों को क्या करना है, देखिए what you have to do, you have to do this that put equal sign first। इक्वल सिंबल को आप सबसे पहले रख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पर 5t है, you write 5t as it is। now 3t, this 3t you want to be on the which side, left side, है ना। here it is positive but on the other side it becomes नेगेटिव। 5t माइनस 3t। अब इक्वल का साइन तो वैसे ही लगा हुआ है सॉरी, इक्वल का साइन वैसे ही लगा हुआ है। इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले से ही है -5, ऐसा कैसे ही लिख दिया हमने। ये जो 3 है इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा इस साइड में, ठीक है। नाउ व्हेन वी ट्रांसपोज -3 इट बिकम्स +3, राइट। 5t माइनस 3t इज इक्वल्स टू 2t and 3 minus 5 it will be -2। तो यहाँ से आ गया -2। अब आप क्या करोगे, आप क्या करिए, you have to find out t। आपको तो t की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये 2t आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक काम करेंगे कि you divide both sides by 2। भाई यहाँ पर 2 आ रहा है ना, इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे, आप डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से, है ना, हट जाएगा। या तो ये तरीका है, अदरवाइज यू डू वन थिंग, you cross multiply this 2 and take it to the other side। याद रखिएगा एक चीज़ और, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं प्लेस चेंज हो जाता है। प्लेस मतलब यहाँ पर 2 आपको नुमरेटर में दिख रहा है, when you cross multiply this 2 take place in the denominator। ये डेनोमिनेटर में अपनी जगह ले लेगा। देखिए कैसे, -2, ये तो ऐसा का ऐसे ही लिख दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या किया, ये वाला 2 किया। नाउ दिस 2 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल टेक प्लेस इन द डेनोमिनेटर, आ गया डेनोमिनेटर में। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये कैंसिलेशन करना है। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम एंड द आंसर एट लास्ट इट विल बी t इज इक्वल्स टू -1। ये आप लोगों का आंसर आ गया। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आप लोगों के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो एक और कोई दूसरी प्रॉब्लम होगी, उसको समझ लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने आप से करिएगा और देखिएगा कि हमारे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एक जैसे ही हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें थोड़ा माइनस साइन आ रहा है, सो आई विल टेल यू दिस क्वेश्चन हाउ टू डू and after 5th we will do 6th question also। so let us do 5th question। it is 2x minus 1। एक काम करिए, मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को वहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, दोनों क्वेश्चन को, 5th को भी और 6th को भी, ठीक है। so here is your question number 5 we have right now। okay, so let us start solving this question। Nothing special we have to do in this question, only just the transposing of variable terms on one side and transposing constant terms on the other side। like you can see here 2x we will keep here only, minus x will be taken to left side becomes plus x, equal sign in the same way। अच्छा, मैंने आप लोगों को इक्वल साइन पहले रखने के लिए कहा था, वैसे समझाता हूँ। फर्स्ट वी kept equal sign, 2x is on left side, let us keep here, minus x is on right side, transpose, after transposing it becomes plus x, 14 is already present, write 14, minus 1 is to be transposed, after transposing becomes plus 1, right। all the terms are done, like all the required terms are transposed। 2x plus x it becomes 3x is equals to 14 plus 1 it becomes 15, right। after this x is equals to 15। okay, now this 3 will be cross multiplied। मैंने बताया आप लोगों को
कि 3 अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको इसका प्लेस चेंज करना होगा। हेयर यू कैन सी इट इन द न्यूमरेटर, यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, आ गया ना डिनोमिनेटर में। तो अभी इसके बाद देखिए, you can do cancellation now, 3 5s are 15, it can go 5 times, so the value of x will be equals to 5। ये आप लोगों का आंसर आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम, we will extend this class for 5 minutes more। okay, now question number 6, right? So let us see what is our next question. Our next question is 8x plus 4 is equals to 3 ब्रैकेट x minus 1 plus 7। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है पहले वाले क्वेश्चन से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में x minus 1 आ रहा है विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इट इज़ इनसाइड दिस ब्रैकेट। सो हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, लेट अस सी। आई ऑलरेडी कॉपीड क्वेश्चन नंबर 6 हेयर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल साइन। नाउ यू कैन सी हियर, एज आई सेड देयर इज अ ब्रैकेट एंड इनसाइड ब्रैकेट वी हैव वेरिएबल, so we can't transpose it as it is. First we have to multiply this 3 and have to open this bracket. Now after multiplying by 3, what will you get? 3x minus 3 into 1 3 plus 7, this you have on right side. Left side 8x plus 4, no transposing is done till now. Okay, after this now you can see things on both sides, what you can see easier. Okay, now let us start transposing. Equal symbol, first of all 8x already we have, 3x after transpose minus 3x, on the right side of equal what do you have, minus 3 plus 7, these things you have. Let me remove this arrow. Okay, now plus 4, it will be transposed, so plus 4 becomes minus 4, 8x minus 3x becomes 5x is equal to minus 3 and minus 4, minus 3 and minus 4 becomes minus 7, what is left, plus 7, write it also. Now you can see 5x is equal to, one is minus 7, one is plus 7, so answer is 0, and in that case x will be equal to 0 upon 5 after cross multiplication. Then you got x is equals to 0. This is your answer for this question, x is equals to 0। एक बार बच्चों वेरीफाई कर लेते हैं रफली, ठीक है, कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू रख देंगे। नाउ यू सी 8 इंटू एक्स, भाई x की वैल्यू क्या है, 0 है, so 8x becomes 0. What will you have on this side, 4. 4 is equal to x, again it is 0, then 3 into minus 1, it becomes minus 3. What do you have here, plus 7, so plus 7. 4 is equal to 7 minus 3, 4. Both sides are coming equal, that means x is equals to 0 is the correct answer, absolutely correct answer. Okay, so this was the way to solve question number 6. Now we can move to our exercise. After question number 6, what do we have? After question number 6, we have question number 7. In question number 7, you can see x is equals to 4 upon 5 into x plus 10 we have. Okay, so what we can do here, मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा देता हूँ आप लोगों को, बट आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 10 विल बी डन बाय यू। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को करना पड़ेगा घर से, क्योंकि बोथ क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर।
Okay, so this is your question number 7. Okay, here it is. Let us start solving this question. Again you can see in the question we have bracket on one side. So मैंने क्या कहा था आप लोगों को क्वेश्चन को पहले इजी बनाना है. That means let us open this bracket by multiplying 4/5. घबराने की कोई बात नहीं है. जो मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को वो इस बार क्या है 4/5 है. इट्स नॉट अ सिंपल नंबर, इट्स अ फ्रैक्शन. तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. आप लोग बड़े आराम से शांत दिमाग से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, इजी है क्वेश्चन. सो व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन? x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स. व्हाट विल कम? इट विल कम 4x/5. this only will come after multiplication. Now you can see plus here, plus copied. 4/5 into 10, it becomes 40/5. भाई सीधी सी बात है, 4 into 10 will be 40 and upon 5, so upon 5. After this, x is equals to, I am not transposing in this step still, because I can see we can cancel 40 by 5. 5 8s are 40. So 8 came here. Now we will start transposing in the question. What we can transpose? All the Chowmins and noodles, all the terms carrying variable. So equal sign, you have x here already, 4x/5. On this side it becomes minus 4x/5 is equals to 8. 8 as it is will be copied. बच्चों आप लोग ये एरो वगैरह मत बनाना अपने सॉल्यूशन में ना, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ. ओके, सो आफ्टर दिस वी कैन सी देर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर विद x, so we can consider 1. Let us take LCM. LCM is 5. What will come here? 5x minus 4x. LCM आप लोगों को लेना आता होगा, नहीं लेना आता होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को LCM भी लेना सिखा दूंगा. शर्माइएगा मत. If you will hesitate here and you would not be knowing how to take LCM, then it could create a problem when you go to higher classes like 10th, 11th, 12th there. So here what I have to write? 8. 5x minus 4x, 1x. 1x we can write as x only. So x/5 is equals to 8. Now again we have to cross multiply बच्चों. Cross multiply करना है and 5 this time is in denominator, and after cross multiplication its place will be changed. That means deno से कहाँ आ जाएगी? numerator में आ जाएगी. That means it becomes 8 into 5 on the other side. So after this x is equals to what we can write here? 40. X is equals to 40 is the final answer of this question. So this was your question. Again we had a bracket in the question, so what we did, we opened that bracket and after that we transposed the things and we got answer. So very easy questions you have here in this exercise. Also in the chapter there are some questions which are language based questions, so there in those questions only you have to pay a bit more attention, otherwise questions are easy. Okay, so we will see you in the I will see you in the next class. Till then you do the homework what I have given you and revise all these questions. Make note of all these questions in your notebook which you made. Okay, so signing off. We will meet tomorrow, right?